بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے علاقے کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں کے خوف کی وجہ یہ تھی کہ اس بستی کے کئی لوگوں نے ایک بہت بڑا اکچا دھاری ناگ دیکھا تھا۔ جس شخص نے سب سے پہلے ناگ دیکھا تھا اس کی بات پر کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا۔ سب لوگوں نے اس شخص کا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹلا دیا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے لوگوں نے جب علاقے کے رہنے والے لوگوں کو یہ بات آ کر بتائی تو لوگ شدید تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کے اندر اس بات کا خوف تھا کہ اس بستی میں اتنے بڑے ناگ کا آنا کسی بہت بڑے خطرے کی علامت بن سکتا تھا۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنے خطرناک ناگ کو اتنی بڑی بستی میں کیسے تلاش کریں۔ آج تک اس بستی میں کچھ ایسا نہ ہوا تھا کہ لوگوں کو کوئی خطرناک جانور نظر آیا ہو۔ سب لوگ مسجد کے پاس کھڑے اس ناگ کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ جب بھی مسجد کے دروازے سے مسجد کے امام صاحب نکلے تھے، وہ حلیے سے ایک باریش سے بزرگ نظر آتے تھے۔ پر سفید پگڑی اور کندھے پر سفید رومال، سفید رنگ کا لباس پہنے وہ انتہائی جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ اس بستی کے سب لوگ ان کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ ان کی پروکار شخصیت کے آگے کسی آدمی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کی کسی بات سے اختلاف کرتا۔ وہ بڑی ہی نرم مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر وہ انہی لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کو کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے میرے بھائیوں، آج آپ لوگ کچھ پریشان سے نظر آتے ہیں۔ ان کا بولنے کا انداز بھی بہت نرم تھا۔ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوئے ایک شخص نے امام صاحب کو کہا، امام صاحب، اس بستی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ بستی میں رہنے والے لوگوں نے ایک بہت بڑا ناگ بستی کی گلیوں اور جھاڑیوں میں پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جن لوگوں نے اس ناگ کو دیکھا ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی ناگ ہے جو مختلف لوگوں کو نظر آیا ہے۔ وہ نہ کوئی معمولی نہیں بلکہ اس کی لمبائی 10 فٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے یہ ناگ دیکھا ہوتا تو اس شخص کی بات کو جھٹلایا جا سکتا تھا، لیکن یہ ناگ ایک سے کئی زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس لیے سب لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر اس ناگ کو کیسے ڈھونڈیں۔ اس پوری بستی میں لوگوں کی بات سن کر امام مسجد بھی سوچ میں پڑ گئے۔ پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ناگ کو جب تک نہ چھیڑیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی وہ ناگ نظر آئے تو اسے مارنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے گا۔ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلے گا۔ آپ لوگ تھوڑا سا صبر رکھیں۔ امام صاحب کے سمجھانے کا انداز بہت ہی پر اثر تھا۔ لوگ ان کی بات سن کر سر ہلا رہے تھے۔ تبھی دور سے ایک نوجوان چلتا ہوا آیا۔ وہ نوجوان انتہائی جاذب نظر، خوبصورت اور پرکشش دکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی اس کے پرنور چہرے پر اور اضافہ کر رہی تھی۔ اگر کسی انسان کی بھی اس کے چہرے پر نظر پڑتی تو دل سے بے اختیار ماشاء اللہ ضرور نکلتا۔ اس نوجوان کا نام روحان تھا اور وہ امام مسجد کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کو لینے آیا تھا۔ تبھی اپنے والد صاحب کے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا کہ بابا جان، آج تو آپ کو کافی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک آپ گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ امی جان آپ کا کھانے پر انتظار کر رہی تھی۔ وہ بہت با ادب طریقے سے اپنے والد سے بات کر رہا تھا۔ بے شک اسے دیکھ کر لگتا تھا کہ مسجد کے امام نے اس کی بہت ہی اچھی تربیت کی تھی۔ تبھی امام صاحب روحان کو سارا ماجرا بتانے لگے اور اسے کہنے لگے کہ بس بستی کے لوگوں کو بہت پریشانی میں مبتلا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ تم بھی جلد از جلد یہ معاملہ حل کرنے کی کوشش کرو اور آس پاس کے علاقوں میں چھان بین کرو کہ آخر وہ ناگ اس بستی میں کیسے داخل ہوا اور کہاں چھپا ہوا ہے۔ روحان خاموشی سے اپنے بابا جان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ اپنے بابا سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بابا جان، میں جلد ہی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس بستی کے دوسرے نوجوانوں سے بھی بات کرتا ہوں تاکہ اس بستی کے لوگوں کو مزید پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تمام لوگ امام صاحب اور اس کے بیٹے کی باتوں کو سن کر تائید میں سر ہلا رہے تھے۔ پھر ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے، یہ جانے بغیر کہ وہ ناگ تھی یا ناگن کسی ایک شخص کی وجہ اس بستی میں داخل ہو گیا تھا۔
وہ اس بستی میں رہنے والا وہ شخص آخر کون تھا، یہ پتہ لگانا ابھی باقی تھا۔ امام صاحب، جس کا نام دین محمد تھا، وہ کافی سالوں سے اس بستی میں رہائش پذیر تھے۔ ان سے پہلے ان کے والد صاحب نور بخش محمد اس مسجد کی امامت کرتے تھے۔ یوں نسل در نسل چلتا ہوا یہ سلسلہ تھا۔ اب امام مسجد سوچ رہے تھے کہ وہ اپنے بیٹے روحان کو بھی مسجد کی امامت کی ذمہ داری سونپ دیں۔ وہ ہر لحاظ سے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ لوگوں کو ان کا دھیما لہجہ اور ٹھنڈا مزاج بہت پسند تھا، اور ان کی اذان کی آواز سن کر تو لوگ جوگ در جوگ مسجد میں چلے آتے تھے۔ جس دن امام صاحب اذان نہ دیتے تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے اور ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے ان کے گھر تک پہنچ جاتے۔ امام صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا جو ان کا بے حد لاڈلا تھا، لیکن اپنے لاڈ پیار میں بھی انہوں نے روحان کو ہرگز نہیں بگاڑا تھا، بلکہ اس کی شخصیت میں ایسا نکھار پیدا کیا تھا کہ لوگ ان کے بیٹے کی تعریف کیے بنا نہ رہ پاتے۔ کتنے ہی بستی کے لوگوں کی یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو امام صاحب کے نیک اور دیندار بیٹے سے بیاہ دیں۔ روحان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ روحان کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈ رہے تھے جو دیندار اور عالمہ ہو، تاکہ دونوں کو ساتھ زندگی گزارنے میں آگے جا کر کوئی پریشانی نہ ہو۔ امام مسجد کی بیوی زبیدہ بانو انہیں کہتی کہ میں اپنی روحان کی دلہن اپنی پسند سے لے کر آؤں گی۔ وہ اپنی بیوی کی بات سن کر مسکرا دیتے اور کہتے کہ کیوں نہیں، روحان تمہارا ہی بیٹا ہے، آخر ہماری بہو تمہاری پسند کی ہی نہیں ہوگی تو کس کی پسند کی ہوگی۔ ان کی زندگی بڑی ہی پرسکون گزر رہی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا مدرسہ بھی تھا جسے روحان نے اپنے ہاتھوں میں سنبھالا ہوا تھا۔ اس مدرسے کی ساری ذمہ داری روحان نے خود اٹھائی ہوئی تھی۔ بلا شبہ دین اور دنیاوی ذمہ داریاں اس نے بھرپور طریقے سے اٹھائی ہوئی تھی۔ امام مسجد کو اس کی بھی جانب سے کبھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑی تھی۔ اب روحان مسجد کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ چھان بین کر چکا تھا، لیکن اس ناگ کا کوئی سراغ ابھی تک کسی کو بھی نہ مل پایا تھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے بستی کے لوگوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ ہوا یوں کہ ایک شخص بہت تیز تیز چلتا ہوا آیا اور مسجد کے امام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا، امام صاحب، میں نے ابھی جھاڑیوں میں ایک بہت بڑی ناگن کو دیکھا ہے۔ اس کے جسم پر نیلی اور ہرے رنگ کی تیز دھاریاں تھیں، اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھیں۔ میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے بہت تیز رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مجھ سے برداشت بھی نہ ہو رہا تھا، اس لیے رفع حاجت کی ضرورت سے نپٹنے کے لیے میں ان بنی ہوئی قریب کی جھاڑیوں میں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ناگن میرے سامنے پن پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اتنی خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھی کہ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ اس شخص کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھیں اور وہ سارا قصہ خوفناک انداز میں بیان کر رہا تھا۔ تو امام صاحب نے بستی کے دوسرے لوگوں سے کہا کہ چلو وہیں چلتے ہیں جہاں اس شخص نے اس ناگن کو دیکھا ہے۔ امام صاحب راستے میں اس شخص سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ ناگ ہے یا ناگن؟ کیا تم نے اسے اتنی غور سے دیکھا تھا؟ تو وہ شخص امام صاحب سے کہنے لگا کہ امام صاحب میری بات کا یقین کریں، وہ ایک اکچا دھاری ناگن تھی، کیونکہ اس کے سر پر ناگ منی بھی موجود تھی۔ اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو پوری طرح دیکھ بھی نہ سکا۔ اگر میں ایک منٹ بھی وہاں بیٹھا رہتا تو شاید وہ مجھے اپنی خطرناک زہر سے مار ہی ڈالتی۔ اب سب لوگ احتیاط سے جھاڑیوں کو ہٹا ہٹا کر دیکھ رہے تھے۔ ارد گرد کی ساری جگہ ہی چھان ماری، لیکن اس ناگن کا کوئی سراغ نہ مل رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے جسم کا کوئی نشان تک زمین پر نہ دکھائی دے رہا تھا۔ آخر امام مسجد سمیت تمام لوگ مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ وہ شخص نہایت خوف زدہ تھا اور اس کا خوف کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ امام مسجد نے کسی بھی طرح اسے سمجھا بجھا کر اپنے گھر بھیج دیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ روحان اپنی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ بابا کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس کو رات گئے تک جاگنے کی عادت تھی۔ جب ہی ان کے دروازے پر دستک ہونے لگی، رات کے اس پہر کون آ سکتا ہے؟ روحان سوچتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ امی اور بابا جان کی نیند خراب نہ ہو یہی سوچ کر وہ جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک نقاب پوش لڑکی کھڑی تھی۔ چونکہ روحان کی آنکھیں دروازہ کھولتے ہی اس سے ٹکرائی تھیں تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں نیلی تھیں۔ اس نے اپنے پورے چہرے کو چھپایا ہوا تھا،
लेकिन काली स्याह चादर में से नीली आंखें ऐसे झांक रही थी जैसे बदलियों में से चांद झांकता हो। रूहान ने उसे देखकर नजरें झुका ली। वो लड़की रूहान से कहने लगी कि मैं एक मुसाफिर हूँ, अचानक रास्ता भटक गई थी, कोई ठिकाना ना मिल रहा था। सुना है कि आपके वालिद साहब मस्जिद के इमाम हैं, इसलिए मदद लेने के लिए आपके घर आ गई। अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपके घर इस काली स्याह रात में क़याम कर सकती हूँ? रूहान उसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया। उसके बाबा जान और अम्मी तो सो रहे थे। भला वो कैसे एक नौजवान लड़की को इस घर के अंदर आने देता? लेकिन उस लड़की की आवाज में बहुत ज्यादा विचार की झलक रही थी। फिर रूहान सोचने लगा कि अगर उसने अंदर आने से मना कर दिया तो वो ना जाने उस काली स्याह रात में कहाँ भटकती फिरेगी। यही सोचकर उसने लड़की को अंदर आने का कह दिया। वो लड़की चुपचाप खड़ी इधर उधर देख रही थी। फिर रूहान से कहने लगी कि मुझे पता है कि आप बहुत इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और एक नौजवान लड़की का यूं आपके घर रुकना किसी भी परेशानी या तशवीश का बायस बन सकती है। आप फिक्र न करें, मैं सुबह होते ही आपके घर से चली जाऊंगी। इसका लहजा कुछ शर्मिंदगी लिए हुआ था, जिसे सुनकर रूहान भी शर्मिंदा हो गया। उस लड़की से कहने लगा, नहीं नहीं, इसमें परेशानी की बात नहीं है, और वैसे भी किसी तन्हा लड़की के लिए रात के इस वक्त बाहर रहना भी ठीक नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मदद लेने के लिए हमारे घर चली आईं। ये घर आपके लिए बिल्कुल महफूज है। वो दोनों पूरे चांद की रोशनी में आपस में बातें कर रहे थे। सर्दियों की रातें वैसे भी कुछ ज्यादा ही अंधेरी होती हैं। चांद की धीमी धीमी रोशनी उस लड़की पर गिर रही थी। जब जब रोशनी उसकी आंखों पर पड़ती उसकी नीली आंखें चमकती तो उसकी आंखें कुछ ज्यादा ही हसीन लगती। फिर रूहान उससे कहने लगा कि अगर आपको खाना वगैरह खाना है तो मैं आपको खाना दे देता हूँ। असल में बाबा जान और अम्मी तो इस वक्त आराम कर रहे हैं और उनकी नींद करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो वो लड़की रूहान को कहने लगी कि आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मुझे एक बिस्तर दे दें ताकि मैं उस पर आराम कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। न जाने कब से भटकती हुई फिर रही थी, कोई रास्ता कोई ठिकाना मुझे नजर ना आ रहा था। वो निहायत दुखी और रंजीदा नजर आ रही थी। फिर रूहान उस लड़की को लिए गेस्ट रूम में चलाया जो सिर्फ मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। उसे इस बात की तशवीश भी थी कि वो अपनी अम्मी और बाबा की इजाज़त के बगैर एक नौजवान लड़की को इस घर में लाकर गेस्ट रूम में सुला रहा है। उसके दिल में एक बार तो ख्याल आया कि वो बाबा जान को उठा देता, लेकिन फिर यह सोचकर कि रात के इस पहर वो परेशान होंगे, उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। जैसे ही वो लड़की गेस्ट रूम में गई, उसने उस लड़की को ताकीद की कि अंदर से दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लें। रूहान की हिदायत पाकर वो लड़की दरवाजे को बंद कर चुकी थी। फिर रूहान भी आकर अपने कमरे में लेट कर सो गया। फजर के वक्त इमाम साहब सबसे पहले उठ जाया करते थे, क्योंकि फजर की नमाज की इमामत की जिम्मेदारी उनकी थी। उन्होंने उठकर वुजू किया और साथ ही रूहान के कमरे का दरवाज़ा भी बजाने लगे। वो वैसे ही देर से सोया था, इसलिए काफ़ी देर तक दस्तक देने के बाद जागा। इमाम मस्जिद ने उसे ख़ास ताकीद की कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुँच जाओ। वो अपने बाबा जान की बात सुनकर सर हिलाने लगा। ना जाने क्यों आज उसका सर बहुत भारी भारी हो रहा था। शायद रात को देर से सोने की वजह से उसका दिमाग कोई काम न कर रहा था, लेकिन नमाज पढ़ने जाना भी ज़रूरी था, इसलिए वो कसमंदली से उठा और जाकर वुज़ू करने लगा। जैसे ही धीरे धीरे उसका जहन जागा तो साथ ही उसे उस लड़की का ख्याल भी आया, नीली आंखों वाली वो लड़की जो अभी तक गेस्ट रूम में सो रही थी। उसने गेस्ट रूम के दरवाजे पर एक निगाह डाली और नमाज अदा करने के लिए मस्जिद रवाना हो गया। सुबह का हल्का हल्का उजाला चारों जानिब फैल रहा था। रूहान भी मस्जिद से नमाज अदा करने के बाद वापस आकर सो गया। सुबह 8 बजे उसकी अम्मी ने नाश्ते के लिए उठा दिया था। फिर किचन में आकर वो नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद उसे मदरसे में रवाना होना था। वो हैरत से सोच रहा था कि वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई न दी थी। क्या वो सुबह होते ही इस घर से चली गई थी? ज्यादा हैरत उसे इस बात की थी कि वो लड़की आखिर बताए बगैर इस घर से चुपचाप क्यों चली गई थी। फिर उसने गेस्ट रूम की तरफ देखा तो ताला पड़ा हुआ था। वो नाश्ता करने में मगन था जब उसकी अम्मी जान उससे कहने लगी कि गेस्ट रूम का दरवाज़ा किसने खुला छोड़ दिया था? मैंने तो उस दरवाजे पर ताला लगाया हुआ था, कब से? रूहान नाश्ता करते करते गड़बड़ा कर रह गया। वो दिल में सोचने लगा कि अम्मी को उस लड़की की बात बताई जाए या नहीं, और फिर उसने कोई भी बात ना बताने का फैसला कर लिया।
जिंदगी में पहली बार वो अपने पापा और अम्मी जान से कोई बात छुपा रहा था, और ये बात छुपाने पर उसे शर्मिंदगी भी थी। लेकिन वो उन सारे सवालों से बचना चाहता था जो ये बात बताने के बाद उसके बाबा जान और अम्मी उससे करने वाले थे। फिर वो साफ सुथरा लिबास पहनकर मदरसे के लिए रवाना हो गया। जब से उस शख्स ने नागिन को देखा था तब से लेकर अब तक कई लोग उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे थे, लेकिन उस नागिन का सुराग अभी तक किसी को ना मिला था। लोग इस बात पर भी शुक्र अदा कर रहे थे कि उस नागिन ने अभी तक किसी भी इंसान को कोई नुकसान न पहुंचाया था। कुछ दिनों बाद मदरसे में हिफ्ज़ कुरान की एक बहुत बड़ी तकरीब होने वाली थी। इस सिलसिले में रूहान मदरसे के दीगर लोगों के साथ तैयारियां करने में लगा हुआ था, इसलिए आज उसे रात गए तक काम करने की वजह से घर जाते हुए बहुत देर हो गई थी। मदरसा घर से ज्यादा दूर न था, इसलिए वो आराम से पैदल आता और जाता था। आधी रात के इस पहर वो धीरे धीरे चलता हुआ घर की तरफ रवाना हो रहा था, जब दूर से एक दरख्त के नीचे कोई लड़की खड़ी नजर आई थी। उसे हैरत हो रही थी कि रात के इस पहर इस दरख्त के नीचे वो लड़की खड़ी वहां क्या कर रही थी। फिर वो लड़की के करीब आकर रुका और उससे कहने लगा कि मोहतरमा, आप कुछ परेशान सी नजर आती हैं, क्या वजह है कि आप रात के इस पहर यहाँ खड़ी हैं? उसकी आवाज़ सुनकर लड़की ने चेहरा ऊपर किया तो रूहान ये देखकर हैरान रह गया कि उस लड़की की नीली आंखें ये बता रही थी कि ये वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बिल्कुल वही थी जो उस दिन आधी रात को मदद लेने के लिए उसके घर पर आई थी। फिर वो हैरत से उस लड़की से कहने लगा कि आप रहती कहाँ हैं जो यूं आधी रात को भटकती फिरती हैं? उस दिन भी आप किसी को बगैर बताए घर से चली गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि बाबा जान या अम्मी जान ने आपकी मौजूदगी का एहसास नहीं किया था, वरना वो ना जाने मुझसे क्या क्या सवाल करते। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रूहान से कहने लगी कि अगर मेरा कोई ठिकाना या घर होता तो मैं आज यूं सड़क पर ना भटकती फिर रही होती। बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाकर यहाँ भागी हूँ। जिस वजह से भागी थी वही खतरा मेरे आसपास यहाँ ही मंडला रहा है। मेरे अपने ही घर में मेरी इज्जत महफूज न थी। यतीमी की वजह से सबने ही मुझ पर बुरी नजर रखी हुई थी। क्या चाचा, क्या मामू और क्या उनके बेटे, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे निकले थे। अपनी इज्जत की खातिर मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और इस अनजान बस्ती में आ गई। सोचा था किसी इज्जतदार घराने में रहकर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब आखिरी हल मेरे पास यही बचा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। वो लड़की ज़ारो कतार आंसू बहा रही थी और रूहान उससे हैरत से देख रहा था। उसकी तरबियत ऐसी थी कि वो किसी भी इंसान को दुखी ना देख सकता था, इसलिए उससे कहने लगा कि आप रोएं मत, मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरे बाबा जान और अम्मी से मैं खुद बात कर लूँगा और मेरे बाबा जान बहुत अच्छे इंसान हैं। वो यकीनन आपकी सारी कहानी सुनकर कभी भी आपको घर में रखने से इनकार ना करेंगे। मेरे बाबा इस बस्ती के मस्जिद के इमाम हैं और उनकी इस पूरे इलाके में बहुत इज्जत है। रूहान की बातें सुनकर उस लड़की की आंखों में बेतहाशा खुशी चमकी थी। फिर वो रूहान के पीछे पीछे चलने लगी। उसकी नीली आंखें रूहान के पुरकशिश सरापर पर थीं। वो बेहद चाहत भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी, लेकिन रूहान इन सब बातों से बेखबर आगे आगे जा रहा था। उस लड़की की सारी कहानी सुनकर इमाम साहब ने उस लड़की को घर में रहने की जगह दे दी थी। भला उन्हें इंसानियत की खिदमत गुजारी करने से क्या एतराज हो सकता था, लेकिन एक बात पर उन्हें तशवीश थी कि उन्हें लड़की की आंखों में झूठ की झलक साफ महसूस हो रही थी, लेकिन अपने उस शक का इजहार वो किसी के सामने नहीं करना चाहते थे। कुछ दिन तो यूं ही खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन बस्ती में शोर होने लगा जब एक शख्स ने यह दावा किया कि उसने आधी रात के वक्त गुजरते हुए इमाम साहब के घर के बाहर एक बहुत बड़ी नागिन को देखा है। वो इमाम साहब के घर की दीवार से गुजरकर बाहर आ रही थी। उसकी बातें हैरत में मुब्तला करने के लिए काफ़ी थी। लोगों को उसकी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा था। ये बातें इमाम साहब के पास भी पहुंच गई थीं। वो भी उस आदमी की बात से हैरत में थे। इसका मतलब है कि इमाम साहब के घर के आसपास ही वो नागिन रह रही थी। उसका ठिकाना कौन सा हो सकता था? कोई दरख्त या जमीन में मौजूद कोई बहुत बड़ा अभी तक इस बस्ती के लोगों को नहीं पता था कि इमाम साहब के घर पर एक अजनबी लड़की रह रही है, क्योंकि इस घर से बाहर निकलते हुए किसी शख्स ने भी उसे नहीं देखा था और इमाम साहब की बीवी खुद भी कहीं ज्यादा आती जाती न थी।
رات کو کھانا کھاتے وقت روحان اور امام صاحب آپس میں اسی آدمی کی باتوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی بیوی کو بھی اس بارے میں بہت تشویش تھی۔ امام صاحب روحان کو بتا رہے تھے کہ اس آدمی کا کہنا ہے کہ وہ ناگن ہمارے گھر کے آس پاس رہ رہی ہے۔ روحان، تم بستی کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ لے کر اچھی طرح سے اپنے پورے گھر کے آس پاس جگہوں کو دیکھو۔ اس ناگن کا کوئی نہ کوئی سراغ یا نشانی تو نظر آ ہی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں یا کسی اور کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ یہ ساری باتیں آپس میں کر رہے تھے اور اس بات سے بے خبر کہ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی جس نے اپنا نام گیتی بتایا تھا، اس کی باتیں غصے سے سن رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے کوئی اس کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، لیکن اس نے اپنی خوبصورتی ابھی تک روحان پر ظاہر نہ کی تھی۔ روحان ابھی تک اس کی صرف آنکھیں ہی دیکھ پایا تھا۔ پھر ایک دن اس نے خود ہی روحان کے سامنے آنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ روحان چھت پر جا کر بیٹھا ہے تو وہ کپڑے سکھانے کے بہانے چھت پر چلی گئی اور بہانے سے اپنے سر سے دوپٹہ سرکا دیا۔ روحان نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے آج تک نظریں اٹھا کر کسی لڑکی کو نہ دیکھا تھا، اور جو لڑکی اس کے سامنے تھی وہ خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ اس کی لمبی سیاہ زلفیں شانوں پر ایسے بکھری تھی جیسے گھٹاؤں نے ڈیرا ڈال رکھا ہو۔ نیلی آنکھیں تو ویسے ہی خوبصورتی میں بے مثال تھیں، اوپر سے لال گلابی ہونٹ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ روحان اتنا دیندار ہو کر بھی اس لڑکی سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا۔ اس لڑکی نے جب محسوس کیا کہ روحان مکمل اس کی خوبصورتی کے سحر میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ شرما کر وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر ایک دن بستی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امام صاحب کے گھر کے آس پاس اس ناگن کو دیکھا تھا تو اسے کسی زہریلے جانور نے کاٹ کر زخمی کر دیا تھا۔ اب وہ بستر پر زخمی حالت میں پڑا تھا۔ یہ حالت کس نے کی تھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بستی کے لوگ بھی بہت پریشان تھے۔ آخر وہ ناگن اس بستی میں کیوں آئی تھی؟ اور جب سے یہ افواہیں بستی میں پھیلی تھی، جب سے بستی کے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی گیتی اپنی خوبصورتی کا سحر روحان پر ڈال چکی تھی۔ روحان اب بہانے بہانے سے اسے دیکھتا، وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آتی تھی۔ روحان کو ایسے لگتا کہ اس کی نیلی آنکھیں ہر وقت اسے ہی دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کی شخصیت پر سحر ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی لڑکیاں روحان کی شخصیت کے زیر اثر اس پر دل ہار بیٹھی تھیں۔ روحان نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں ایسا کچھ محسوس نہ کیا تھا، لیکن اس سے گیتی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ پیار محسوس ہوتا تھا، اور اس کی ان پیار چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر خود بخود اس کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ جب رات کو روحان گھر پر آتا تو وہ اس کی امی کو کہتی کہ خالہ جان آپ سو جائیں، روحان کا کھانا میں نکال کر دے دوں گی۔ وہ محسوس کرتا کہ گیتی ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے اور اسے اپنی موجودگی کا احساس کروانا چاہتی ہے۔ اس کی نشیلی آنکھیں اتنی حسین تھیں کہ روحان اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا تھا۔ یہ بات امام صاحب نے بھی محسوس کر لی تھی۔ وہ روحان کو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لڑکی خواہ مخواہ تم سے میل جول بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ بات مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم اس سے بلا وجہ گفتگو کرو۔ ایک اجنبی نوجوان لڑکی کو میں نے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ جب بستی کے لوگوں کو یہ بات پتہ چلے گی تو بستی میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ اور اوپر سے تم اس کے ساتھ اتنی گفتگو کرتے ہو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ لوگ باتیں بنائیں گے۔ اس بستی میں میری ایک عزت اور مقام ہے۔ امید ہے کہ تم اسے قائم رکھنے میں میری بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرو گے۔ روحان اپنے بابا جان کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بابا جان کو اتنا انجان سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے بابا جان تو ہر چیز پر نظر رکھ رہے تھے۔ پھر بستی کی کچھ عورتیں دم کروانے کے لیے جب امام مسجد کے گھر گئیں تو انہوں نے گیتی کو ان کے گھر پر دیکھ لیا۔ وہ امام مسجد کے گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی دیکھ کر حیران تھی۔ گیتی کو ان کا گھر آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ ساری عورتیں ہی اسے بڑے غور غور سے دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ عورتیں امام صاحب کی بیوی سے پوچھنے لگیں کہ یہ لڑکی کون ہے تو امام صاحب کی بیوی گڑبڑا گئی۔ پھر ان عورتوں کو کہنے لگی کہ یہ لڑکی دراصل ہماری دور پر کی ایک رشتہ دار ہے۔ اس کی ماں باپ اچانک مر گئے تھے تو اس لیے اسے ہم اپنے گھر لے آئے۔ وہ اپنے جھوٹ بولنے پر کچھ شرمندہ تھی،
लेकिन ये भी ना बता सकती थी कि वो लड़की मुकम्मल तौर पर अजनबी थी। फिर बस्ती के लोग बातें बनाते हैं कि उन्होंने एक अजनबी लड़की को एक जवान बेटे के होते हुए अपने घर पर रखा हुआ है। फिर कुछ दिनों बाद वो वाकया पेश आया जिसका किसी को गुमान भी न था। हुआ यूं कि वो नीली आंखों वाली लड़की रात को न जाने किस पहर छत पर खड़ी थी, तब उसे एक शख्स ने देख लिया था। दूसरी सुबह उसने पूरी बस्ती के लोगों को जमा किया और बुलंद आवाज से कहने लगा कि भाइयों, मैं आज आपसे एक बात कहने वाला हूँ। इमाम साहब ने जिस अजनबी लड़की को अपने घर पर रखा हुआ है, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। मैंने अपनी उन गुनाहगार आंखों से उस लड़की को एक नागिन के रूप में बदलते हुए देखा है। वो लड़की छत पर खड़ी थी। मैं अपनी छत पर किसी काम से गया था। मुझे पूरा यकीन है कि जो लड़की इमाम साहब के घर पर रह रही है वो लड़की वही है। अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ी तो उसने आसमान की तरफ देखते हुए अपने आप को एक नागिन के रूप में ढाल लिया और दीवार पर रेंगते हुए वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। आप लोग इमाम साहब से पूछें कि वो आखिर लड़की कौन है, कि उन्होंने अपने घर पर उसे क्यों रखा हुआ है। बस्ती के सारे लोग हैरान थे। इमाम साहब भी हक्का बक्का उनकी बातें सुन रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें ये दिन भी देखना था। फिर वो बस्ती के लोगों से कहने लगे कि वो लड़की तो बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है, लेकिन आज तक उन्होंने उस लड़की में ऐसी कोई बात नहीं देखी। हो सकता है मुराद को कोई गलत फहमी हुई हो या नागिन के डर से उसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो, लेकिन वो मुराद नामी आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और लोगों से यही कहे जा रहा था कि इमाम साहब से कहें कि उस लड़की को यहाँ से निकाल दें। फिर बस्ती के लोगों ने इमाम साहब की बात पर यकीन कर लिया और उस आदमी मुराद से कहने लगे कि नागिन के खौफ की वजह से तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो, जो अजीब व गरीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। हम बिना सबूत के ये बात कैसे कह सकते हैं कि जो लड़की इमाम साहब के घर पर रह रही है वो नागिन है। अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो इमाम साहब उस लड़की को अपने घर से निकाल दें, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो वो लड़की बेचारी बेमौत मारी जाएगी। हम पागल नहीं हैं कि तुम्हारी बातों में आकर इमाम साहब की इन बातों को झूठ करार दे दें। मुराद अपनी बात पर अड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बातों से ज़्यादा इमाम साहब की बातों की अहमियत थी। फिर सब लोगों के समझाने पर मुराद अपने घर रवाना हो गया। इमाम साहब भी अपने घर जा रहे थे, लेकिन वो रास्ते में सोच रहे थे कि उस शख्स की आंखें बता रही थी कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे इस बारे में गौर करना चाहिए। वो निहायत तशवीश में मुब्तला थे। फिर जैसे ही घर गए तो उन्होंने उस लड़की को नोट करना शुरू कर दिया। वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी और किस मकसद के तहत उनके घर रह रही थी। वो ये सारी बातें मालूम करना चाहते थे। फिर एक दिन वो रफ़ा हाजत की गर्ज से आधी रात को उठे थे तो उनकी आंखों ने जो मंजर देखा वो यकीनन भुलाने के काबिल नहीं था। वो जैसे ही उठे तो उन्होंने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर जा रही थी। आधी रात को भला छत पर जाने का उसका क्या मकसद हो सकता था। वो यही देखने के लिए धीमी धीमी चाल चलते हुए उसके पीछे पीछे चले गए और फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा जब उस लड़की ने अपने आप को एक खतरनाक इच्छाधारी नागिन के रूप में ढाल लिया था। वो मुंडेर पर बैठकर चांद को देख रही थी। नागिन बनकर भी उसकी आंखें वैसी ही नीली थीं जैसे इंसान बनकर। उन्हें अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि वो अपने ही घर में उस नागिन को पाल रहे थे जो बस्ती वालों के लिए शदीद खतरे का बायस बन रही थी। खौफ व दहशत से उनकी हालत बुरी हो गई। वो कैसे चलकर नीचे आए थे उन्हें खुद मालूम न था। बिस्तर पर लेटकर पानी पीने के बावजूद भी उनकी हालत न संभल रही थी। वो सोचने लगे कि अगर नागिन को ये पता चल गया कि उसका राज इमाम मस्जिद के ऊपर खुल गया है तो वो ना जाने और क्या खतरनाक रंग दिखाएगी। खौफ के मारे उन्हें पूरी रात नींद न आई। सुबह जब वो फजर के वक्त उठे तो उन्होंने रूहान को उठाया और उससे ताकीद की कि मस्जिद की इमामत आज वो करवाए, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। रूहान भी उन्हें देखकर तशवीश में मुब्तला हो गया, लेकिन वो उससे कोई भी बात किए बिना कमरे में लौट आए और आकर नमाज अदा करने लगे। पूरा दिन वो घर पर थे। उनकी बीवी उनकी हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी। वो उनसे पूछने लगी कि आपकी तबीयत को अचानक क्या हो गया है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश थे। जब ही धीमी धीमी चाल चलते हुए वो नागिन उसके कमरे में आई थी। उसके हाथ में दूध का गिलास था। उसे देखकर इमाम मस्जिद को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी बीवी से कहने लगे कि इस लड़की को कहे कि यहाँ से चली जाए। वो लड़की हैरत से उन्हें देख रही थी। इमाम मस्जिद की बीवी ने उन्हें कहा कि क्या हुआ, आप गिती पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो बेचारी बड़ी शरीफ लड़की है।
तो इमाम साहब गुस्से में कहने लगे कि ये कोई लड़की नहीं है, बल्कि ये एक इच्छाधारी जहरीली नागिन है जिसने बस्ती के सारे लोगों को परेशान कर रखा है। मैं इस नागिन से पूछता हूँ कि आखिर इसका मेरे घर आने का क्या मकसद था। वो गुस्से से बोल रहे थे। नागिन समझ चुकी थी कि इमाम साहब उसकी असलियत को जान चुके हैं। जब उसने इमाम साहब को गुस्से में देखा तो उसके गुस्से से ज्यादा नागिन को गुस्सा आया था और उसने अपने आप को इच्छाधारी नागिन की शक्ल में ढाल दिया। फिर चिल्लाकर इमाम साहब को कहने लगी कि क्या हुआ, अगर मैं नागिन हूं तो मैंने कौन सा आपके घर पर किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है? अगर मैं चाहूं तो अपने जहर से सैकड़ों लोगों को मार सकती हूं, लेकिन मैंने इस बस्ती में रहकर किसी को आज तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम साहब और उसकी बीवी उसको नागिन की शक्ल में देखकर खौफ से लरज रहे थे। फिर नागिन इमाम साहब से कहने लगी कि मुझे आज से नहीं बल्कि आज से 2 साल पहले आपके बेटे रूहान से इश्क हो गया था, जब वो रास्ता भटकते हुए हमारी हवेली में आ गया था। उस हवेली में हम 1000 साल से रह रहे थे। तुम्हारा बेटा रूहान जब वहां आया तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये थी कि मेरे साथ ही नागिनों ने अपने आप को बहुत ही खूबसूरत लड़कियों में ढाल लिया था, लेकिन रूहान ने उन्हें आंख उठाकर भी ना देखा था। उसकी आंखों की पाकीज़गी और शराफत देखकर मैं उसकी दीवानी हो गई थी। इतने दिन से मैं उसका वहां शिद्दत से इंतजार कर रही थी। जब वो वहां आया तो मैं खुद ही यहाँ आ गई। अब मैं तुम्हारे बेटे को लिए बिना इस बस्ती से हरगिज नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से फन निकाल कर लहरा लहरा कर कह रही थी और उन दोनों मियाँ बीवी की जान पर बनी हुई थी। उन्हें इस कदर खौफ पे मुब्तला देखकर नागिन उनसे कहने लगी कि अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना अगर किसी ने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। मैं सिर्फ रूहान की खातिर इस बस्ती में आई थी और मेरा मकसद सिर्फ उसे पाना है। ये कहते ही उसने अपने आप को नागिन की शक्ल में ढाला और इमाम साहब और उसकी बीवी की आंखों के सामने ही गायब हो गई। उसे देखकर यह महसूस हो रहा था जैसे वो एक खतरनाक ताकतवर नागिन थी। जब रूहान घर पर आया तो उसने अपने माँ बाप की हालत देखकर पूछा कि क्या हुआ है आप लोगों को। फिर इमाम साहब और उसकी बीवी ने सारा किस्सा उसे बता दिया और रूहान से पूछने लगे कि तुम कब उस हवेली में गए थे जहां पर नागिनों का बसेरा था। रूहान भी ये बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर अपने बाबा जान से कहने लगा कि आज से 2 साल पहले जब मैं अपने दोस्त से मिलने गया था तो वापस आते हुए रात के वक्त मेरी गाड़ी एक जंगल में खराब हो गई थी। उस गाड़ी में मैं अकेला था। गाड़ी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आसपास कोई घर देखकर उसमें आज रात के लिए कयाम कर लेता हूँ। यही सोचकर मैं उस हवेली में चला गया। उस हवेली में तो बहुत से लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरी खूब आओ भगत भी की थी। उस हवेली में बहुत खूबसूरत लड़कियां भी थीं, लेकिन मैंने उन्हें आंख उठाकर भी ना देखा था कि वो कौन थी। आखिर ये नागिन वहां कैसे मौजूद थी, मुझे कुछ इस बारे में मालूम नहीं। इमाम साहब अपने बेटे की जिंदगी को खतरे में देख रहे थे। आखिर वो उनका इकलौता बेटा था। वो ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे। दूसरे दिन वो नागिन गीती की शक्ल में उनके घर में मौजूद थी। उसकी नीली आंखें इमाम साहब को जहर भरी महसूस हो रही थी। उस नागिन ने उन्हें ताकीद की थी कि इस बात का जिक्र वो किसी के सामने नहीं करेंगे। वो बेबसी से अपने घर पर उसे मौजूद देख रहे थे। रूहान और उसका आमना सामना हो चुका था और रूहान ने उसे देखकर मुंह फेर लिया था। वो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो नागिन एक लड़की की शक्ल में आकर उसे इतना बड़ा धोखा दे रही थी और उसकी हमदर्दी पाकर वो इस घर में जगह बना चुकी थी। इमाम साहब ये सोच रहे थे कि अगर बस्ती के लोगों को ये पता चल गया कि इतने दिनों से उन्होंने अपने घर पर उसी नागिन को रखा हुआ है जिसने इतने दिनों से बस्ती के लोगों को परेशान करके रखा हुआ था, तो लोगों के सामने उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। इस बात का कोई ना कोई हल तो निकालना चाहिए था। वो शदीद परेशानी में मुब्तला थे। फिर उनके जहन में झमाका हुआ। उन्हें याद आया कि वो इस सिलसिले में सपेरों की मदद ले सकते थे। उन्हें सांपों और नागिनों के बारे में बहुत मालूमात होती हैं और वो इच्छाधारी नागिनों से निपटने का कोई ना कोई हल तो उनके पास जरूर होगा। ये बात सोचकर उनकी परेशानी थोड़ी कम हुई। उन्हें जब भी जाना था उस नागिन की जहरीली नजरों से बचकर जाना था। अगर उसे ये खबर हो जाती कि वो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या चाल चलने वाले हैं तो अपने खतरनाक जहर से ना जाने क्या हशर करती। अब उन्होंने अपनी बीवी को ये बात बताई कि वो किसी से मिलने जा रहे हैं और घर से रवाना हो गए। रास्ते में किसी से पूछ पूछ कर वो आखिरकार सपेरों की बस्ती में पहुंच गए। उन्हें किसी बुजुर्ग सपेरे से मिलना था और उनसे अपनी परेशानी को बयान करना था।
फिर एक सपेरे ने उस बुजुर्ग सपेरे का पता बता दिया जो उनमें से सबसे ज्यादा तजुर्बेकार था। वो उनके सामने जा बैठे और अपने साथ पेश आने वाले सारे वाकयात से उन्हें आगाह कर दिया। वो बुजुर्ग सपेरे भी बड़ी हैरत से उनकी दास्तान सुन रहे थे। फिर उन्हें कहने लगे कि देखो, इंसान और नागन का प्यार आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से चला रहा है। कभी इसमें इंसान की मौत हो जाती है तो कभी नागिन की, लेकिन जिस नागिन का आप बता रहे हैं वो तकरीबन 1000 साल पुरानी नागिन है और निहायत ताकतवर भी। इससे आपके बेटे की जिंदगी बचाना भी बहुत जरूरी है। उस नागिन से लड़ाई की सूरत में जंग लड़ना आसान नहीं है, इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा हरबा आजमाया जाए कि जिससे आपके बेटे को भी नुकसान न पहुंचे और उस नागिन का भी नुकसान न हो। इसका एक हल ये है कि आप अपने बेटे रोहान को एक बार फिर उसी हवेली में भेजें, क्योंकि उन सब नाग और नागिनों का एक बड़ा नाग देवता होता है जिसकी हर कोई हर बात मानते हैं, और हर अमावस की काली अंधेरी रात को ये सारे नाग और नागिनें इकट्ठी हो जाती हैं। तुमने रोहान को कहना है कि ये उस हवेली में जाकर उस नाग देवता के आगे जाकर फरियाद करें कि उनकी एक मातहत नागन किस तरीके से उनकी बस्ती के लोगों को और उनके घर वालों को परेशान कर रही है। मेरा ख्याल है कि वो उस नागन को ज़रूर उसको अपने उन इरादों से बाज रखने की कोशिश करेगा। उस बुजुर्ग सपेरे की बात बेशक इमाम साहब के दिल को लग रही थी। वो उनका शुक्रिया अदा करके वापस उस बस्ती की तरफ रवाना हो गए। अब जल्द से जल्द उन्हें रोहान से बात करनी थी और उस नागिन की गैर मौजूदगी में उसे ये सारी बात बतानी थी। उस बुजुर्ग सपेरे की दी गई सारी हिदायत उन्होंने रोहान के सामने रख दी। रोहान वहां जाने से बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे पहले ये मालूम न था कि उस हवेली में इतने सारे नाग या नागने मौजूद, लेकिन अब उनकी मौजूदगी का ख्याल करके उसे तशवीश हो रही थी। इमाम मस्जिद ने उसे समझाया कि तुम्हारा वहां जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके ना सिर्फ तुम अपनी बल्कि इस बस्ती के लोगों की परेशानियों को भी दूर कर दोगे। इमाम साहब के बहुत समझाने पर रोहान वहां जाने पर आमादा हो गया। इमाम साहब भी उसके लिए दुआ करने लगे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। रोहान अब उस हवेली में पहुंच चुका था। उसे वहां खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। अभी तक उसे किसी की मौजूदगी का वहां कोई शक न हो रहा था। जब भी अपने पीछे उसे 3-4 लड़कियों की हंसी की आवाज़ें आने लगी। वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे 3 लड़कियां खड़ी हुई थी जो उसे देखकर हंस रही थी। फिर वो रोहान से कहने लगी कि नौजवान, तुम तो वही हो जो पहले भी इस हवेली में आ चुके हो। तुम्हारे चेहरे की परेशानी बता रही है कि तुम किस कदर परेशानी में मुब्तला हो। क्या वजह है कि तुम इतने परेशान हो? फिर रोहान उनसे कहने लगा कि मैं तुम्हारी साथी नागिन की वजह से एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस चुका हूँ। मुझे तुम्हारे नाग देवता से मिलना है और मैं अपनी सारी परेशानी उन्हें ही बताऊंगा। फिर उन तीनों लड़कियों के कहने पर रोहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो नाग देवता नाग की शक्ल में उसके सामने मौजूद था। पीछे खड़ी होती लड़कियां उससे कह रही थी कि तुम्हें जो भी परेशानी हो इनको बता सकते हो। तभी रोहान हाथ जोड़कर उस नाग देवता से कहने लगा कि आपकी इस हवेली की एक नागिन जो मेरी आशिक बनकर मेरी बस्ती में जाकर लोगों को और मेरे घर वालों को बुरी तरह परेशान कर रही है, उसका कहना है कि वो मेरा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी, और अगर उसके साथ किसी ने बुरा करने की कोशिश की तो वो अपने जहर से सारे लोगों को मार देगी। आप नागिनों के देवता हैं, इसलिए मैं आपके सामने गुजारिश करने आया हूँ कि आप अपनी मातहत नागिन को कहें कि वो आम लोगों को सताना छोड़ दे। हम मानते हैं कि आपकी ताकत के आगे हमारी ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन नाग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके इंसान को नुकसान पहुंचाकर गलत करते हैं। अगर आप हमें उससे बचा लेंगे तो हमारे दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि आज तक हमने अपनी ज़बान या अपने हाथ से किसी इंसान को कोई तकलीफ न दी है और ना हम देना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उस नागिन के खौफ में मुब्तला होकर कोई शख्स ये गलती कर बैठे कि उस नागिन को मारने की कोशिश करे। वो नागिन तो ना मरेगी, लेकिन हाँ, उस शख्स की मौत ज़रूर हो जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उस नागिन को वापस अपनी हवेली में बुलाकर हमेशा हमेशा के लिए उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर दें। रोहान हाथ जोड़कर नाग देवता के सामने ये सब बातें कर रहा था। फिर पीछे खड़ी तीनों लड़कियां जो यकीनन नागिनें ही थीं, वो रोहान से कहने लगी कि नाग देवता तुम्हारी बातों के आगे सर हिला रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हारी सारी बातें सुननी हैं और वो इस सिलसिले में अब तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे, इसलिए तुम बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकते हो। रोहान ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद जब वो तीनों घर में मौजूद थे तो वो लड़की गीती नागिन की शक्ल में उनके घर आई थी और इमाम साहब से कहने लगी कि
मैं रूहान से सच्चा प्यार करती थी और इस प्यार की खातिर ही इस घर तक आई थी, लेकिन चूंकि मुझे ये सारी ताकत मेरे नाग देवता ने दी है तो इसलिए उनके कहने पर मैं यहाँ से चुपचाप जा रही हूँ। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे बेटे से इश्क करने लगी थी, और इश्क चाहे इंसान करे या नाग, वो उस इंसान को ज़रूर पाने की कोशिश करता है जिससे हो जाता है। मैं आज खाली हाथ इस घर से लौट रही हूँ, लेकिन रूहान को देखने और उससे मिलने के लिए कभी भी इस घर में वापस आ सकती हूँ। ये सारी बातें कहकर वो प्यार भरी नज़र रूहान पर डालती हुई वहाँ से गायब हो गई। इमाम मस्जिद और रूहान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो नागिन वाकई वहाँ से चली गई थी। इमाम मस्जिद के चेहरे पर इत्मीनान था। वो नमाज पढ़ने की गर्ज से उठकर वुज़ू करने लगे। उन्होंने रूहान के साथ साथ इस बस्ती के लोगों की परेशानी भी दूर कर दी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।